नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अरविंद सिंह पेमावत, हेड ऑफ करियर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस ऑफ गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ नया लेकर आते हैं आपके लिए करियर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो आज भी नए तरीके से, नए सिरे से आज हमारे साथ जो हमारे स्पेशल मेहमान है, जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र मिस्टर राजीव पंड्या, ही इज हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ गीतांजलि ग्रुप उदयपुर। सर वेलकम सर। Thank you, Welcome Arvind. on our Thank you. portal. And he is managing more than 5,000 human resources, and he has taken more than 10,000 interviews. If you talk about experience as well as the freshers candidate, so he has a great expertise in the field of HR professional, and he is a motivational speaker also. He has his own YouTube channel with the name of Rajiv Pandya. You can follow him. You can get more guidance about these all HR related issues and the questions related to the HR. So the link, everything will be there in the description box. And today we'll talk about what HR expect from the candidate during the HR interviews. Because सर का इतना एक्सपर्टाइज है और हम चाहेंगे कि सर से कुछ ऐसी ज्ञान की बातें हमें मिले और हमारे विद्यार्थियों को मिले जो कुछ नया विद्यार्थियों के लिए कुछ लेके आए। तो सर इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि when we go for the HR interview, any candidate is going for the HR interview, then what HR expect from the candidate during the HR interview? We want to know the three qualities of any candidate. They must have that so that the HR will get impressed. Before answering the question, Arvindji, first of all, thank you so much Thank you, for sir. Welcome. introducing me on this platform. And I must congratulate all the viewers जो भी लोग देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये कन्वर्सेशन आज का जो रहेगा वो उनके लिए लाभप्रद साबित होगा। So when you ask about the three qualities which HR expects from the candidate, so there is a one word that is A, S and K, ask. Ask. Okay. A refers to the attitude, S refers to the skills, and K refers to the knowledge. So, what is attitude, what is skills, and what is the knowledge? Three things are very much important, and in सभी के अंदर A जो है right attitude is very much important because Okay. अगर कैंडिडेट का एटीट्यूड सही है तो उसको जीरो से हीरो बनाया जा सकता है। समटाइम्स वी फेस द कैंडिडेट जिनके पास नॉलेज बहुत कुछ होता है बट दे आर जीरो फ्रॉम द एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू एंड उस कारण से हमें उनको इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट भी करना पड़ता है। सो कैंडिडेट Right. हैज टू सी हाउ ही इज बिहेविंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू, हाउ ही इज रिप्लाइंग बिफोर द इंटरव्यू पैनल एंड व्हाट राइट एटीट्यूड ही इज हैविंग और नॉट। राइट। स्किल्स अगर कम होगी थोड़ी बहुत तो भी चलेगी, नॉलेज भी थोड़ा बहुत कम होगा तो चलेगा, लेकिन एटीट्यूड अगर पॉजिटिव नहीं है, किसी जॉब को पाने की जो आपकी इच्छा है, वो एटीट्यूड अगर अच्छा नहीं है तो आपको समस्या हो सकती है जॉब को पाने के लिए। आई थिंक ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा सजेशन होगा कि आस्क, और आस्क इज द ग्रेट पॉइंट फॉर दोज स्टूडेंट हु आर थिंकिंग दैट हाउ दे कैन गेट द जॉब इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस। दैट इज राइट। रियली वेरी नाइस। सेकंड क्वेश्चन जो स्टूडेंट को नॉर्मली पूछा जाता है किसी भी एचआर इंटरव्यू में, क्योंकि एचआर जस्ट वांटेड टू चेक द बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट, तो दे ऑलवेज आस्क कि वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 10 ईयर, whether you are in the organization or you are not in the organization. So what a standard answer, there is no any kind of formula for answering these kind of questions, but as a HR professional आपके एक्सपीरियंस के अनुसार आपको क्या लगता है कि क्या विद्यार्थियों को कैसा आंसर देंगे तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? See, first of all, I would like to say that many of the candidates, when we have interviewed them, somebody has completed their master's degree in BTech Computer Science or BTech Mechanical or so, or maybe masters of Business Administration and all, and they are choosing such a field wherein there is no any linkage between their degree and their job profile. So it is very much important to understand about the basic competencies which they have earned during the course of their PG degree. So it Right. is very important, and many a times candidates are not replying about their vision. So every candidate should have a clear vision that where they want to reach during the 5 years, 10 years program. So let's say MBA graduates are there who are joining as a trainee or as a management trainee. So many times students are not able to reply in such a way that okay, they are looking for some higher level position or so. They say that, you know, sir, we are not clear, still I have to think over it. सो मैं ये कहना चाहूंगा कि कैंडिडेट्स को, अर्जुन को जिस तरह से चिड़िया की आंख दिख रही थी वैसे चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। दे शुड बी क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स, देयर विजन एंड देयर मिशन।
unless they are not clear, they cannot do miracles in their jobs. So मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, चाहे आपने डेटा एनालिटिक्स चूज किया है, चाहे आपने प्रोक्योरमेंट चूज किया है, चाहे आपने केमिकल इंजीनियरिंग चूज किया है, बट वॉट एवर दी पीक इज देयर, उस फील्ड के अंदर, आप उस क्षेत्र के अंदर जो पराकाष्ठा है, उस पराकाष्ठा को जब तक आप अपना लक्ष्य नहीं बनाओगे, तब तक आपके डिग्री करने का, आपको कंटिन्यूअस जॉब में रहने का कोई सार्थक ऑब्जेक्टिव जो है वो साबित नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कैंडिडेट है वो डे वन से ही ये डिसाइड करे, जब वो जॉब के अंदर घुसते हैं। लेट्स से आई एम इन एचआर, when I joined the HR and I was there as a HR executive in my first company when I started my job with the Nirma. So I was very much clear that I have to attain the topmost position in the field of human resources, like Right. maybe We have to think about director top. of HR, director of chief human resource officer also. So I think my aim and my objective was very much clear that day. Very nice. Likewise, wherever, whatever the field it is, maybe it is artificial intelligence, maybe it is augmented reality, maybe it is data analytics, but each and everyone should have clear cut goals. Great, great, sir. I think if we are thinking about peak in that specific areas, then automatically our vision must be clear. So that is Right. really great. The third question, which always asked from the HR side to the candidate, okay, what is your salary expectations? Because when somebody is getting recruited as a fresher, he is starting his journey of jobs, or normally in the campus interview, the package is always clear that what will be the package. But again, the HR just wanted to know the thought process of the candidate. So they always ask, what is your salary expectation? How much you want from our side? So in that case, what a fresher has to give the reply, or what our experience has to give the reply? In brief, we just See, want to know. being a fresher, candidate should reply that, sir, I'm a fresher candidate, and right now I'm coming with a learning attitude. So whatever the company's benchmarks are there, I'm ready to join the organization. This shows the positive attitude behind learning. The candidate has a fire in the belly to learn something. Sometimes I've seen the candidates who are in the very early stage, who are very fresher, and they are negotiating with the HR experts or with the interview panel about the salary. Although they are not having those competency which are required by the organization, and that creates a negative impression on the part of the candidate. So candidate should be quite humble, patient, and they should not expect much. And the better answer is that it is as per the company standards. And first of all, these days, I am at the learning stage, and I would like to learn from you people. So whatever company has decided the benchmarks, I am ready to join the organization. This Great should for be the the freshers. perfect answer for any candidate. The experienced candidate, the same kind of answer has to be given to the HR when they are asking what is your salary expectation. See, whenever you are facing any kind of interview, it is not the salary only. Candidate is Definitely. leaving the organization. I have seen so many surveys wherein candidates are not leaving company only for the sake of the money. Candidates are leaving for the sake of the motivation. Candidates are leaving for the bad Environment behavior about their also. bosses, their subordinates, bad management of the working culture, work ethics. Many things are there. See, Okay. during the times of pandemic also, you have seen that many of the organizations have retrenched their employees, and people were not getting job anywhere, and they had to come back at home without any jobs. They were jobless for long hours, long days, and long months. So this has created somewhere dissatisfaction in the minds of the people, and that is why also people have left their jobs, and they have changed their companies. So money is not the only source for which company candidates are leaving their jobs. For Apart from experienced this, candidate, definitely. some Like, basic physiological and psychological needs are also there, which needs to okay. be catered. Very nice, sir. I think the next question from my side, that when students are facing the interviews, uh, some students are having very good knowledge about the subject or the domain for which they are applying for, but they are not good in communication, the English communication. Because I have getting many inquiries from many of the students from all across the country that, sir, we are good in technical, we are good in our subject, but we are not good in communication. So we get hesitated during the interview. सो इन दैट केस एज ए एचआर आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी जॉब के लिए, या नॉलेज अगर आपके पास अच्छा है तो कम्युनिकेशन अगर थोड़ा बहुत कम भी होगा तो वो चल सकता है? See, being HR, whenever I take the interviews, I like to make them feel comfortable.
First of all, I ask them question. Being the mature HR, you should ask the questions that अरविंद जी, मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम कॉलेज से पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर किसी काम को करने की काबिलियत नहीं है। ये मेरा बरसों का अनुभव रहा है। सो मैंने कई सारे ऐसे कैंडिडेट इंटरव्यू किए हैं जिन्होंने रूरल बैकग्राउंड में, जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई पूरी करी है, हिंदी मीडियम में अपनी पढ़ाई पूरी करी है, लेकिन जब शॉप फ्लोर पे और परफॉर्म करने की बात आती है तो उन लोगों ने एक्सीलेंट रिजल्ट्स है वो ऑर्गेनाइजेशंस को दिए हैं। राइट। मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन के बेस पे कैंडिडेट को रिजेक्ट करना एक एचआर का जो है वो राइट फीचर नहीं होगा। सो एंड वी नेवर डू दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई आंसर्ड यू, एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स। मैं राइट। उनको पहले ये कंफर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि आपको जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात करना चाहूंगा। राइट। इफ कैंडिडेट इज कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और मेक देम फील कंफर्टेबल, लेट देम स्पीक वॉट एवर दे नो। मैं उनको ये बोलता हूँ, आपको जितना आता है वो मुझे आप बताइए। मेरा जानने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कैंडिडेट अपना कॉन्फिडेंस कितना शो करता है, और उस ग्रेट। कॉन्फिडेंस के बेस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ देयर इज़ अ राइट। राइट। देयर इज़ अ राइट। हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन द कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, राइट। एंड राइट। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टुपिडिटी। तो समटाइम्स डेफिनेटली। कैंडिडेट है वो ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं, कई बार कॉन्फिडेंस भी दिखाते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, एंड डेफिनिटली कम्युनिकेशन डज़ नॉट मैटर, क्योंकि वो जॉब के साथ में धीरे-धीरे डेवलप हो जाता है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, गेमिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इस तरह से डिज़ाइन करी हुई होती हैं कि साल 2 साल के अंदर कैंडिडेट है वो उन अ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेता है। तो मेरे इसी क्वेश्चन के साथ सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन एक तरह से एक बेसिक एक पार्ट है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग, राइट? इफ यू हैव द नॉलेज, इफ यू हैव द एटीट्यूड, इफ यू हैव द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द जॉब, then definitely you are going to get the job. And with this, my last question to you, सर, एज ए एचआर प्रोफेशनल, जब कोई विद्यार्थी से ये पूछा जाता है कि अब आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, और आप पूछते भी होंगे किसी कैंडिडेट से, जैसे फॉर एग्जांपल समबडी इज कमिंग फॉर द गीतांजलि ग्रुप इंटरव्यू, you might also be asked to the candidate that what you know about गीतांजलि ग्रुप. तो अगर वो कैंडिडेट को अच्छा उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर अच्छा पता है, तो इट कैरीज अ वेटेज और नॉट, और इट डज नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ वेटेज? ऑब्वियसली अरुण जी, आपने ग्रुप कंपनीज के बारे में पूछा। मैं आपको बताऊं, ग्रुप कंपनीज के अलावा मेरा हर एक कैंडिडेट को सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, अगर आपने अपना एमबीए किया है, आपने अपना इंजीनियरिंग किया है, तो गिव मी द नेम ऑफ 5 ऑथर्स व्हिच यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सो राइट। मेनी टाइम्स कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि और उसी से हमें ये अंदाजा लग जाता है कि कैंडिडेट के किस अंदर तरीके की पढ़ाई की है कितना इन्होंने? नॉलेज है और किस तरह की राइट। तैयारी वो करके आया हुआ है। तो राइट। राइट। कैंडिडेट है वो उसका आंसर देने में असमर्थ रहते हैं। सेम वे हम लोग उनको ये भी पूछते हैं भाई कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपका नॉलेज क्या है। कई बार हम उस दिन के या आसपास पिछले 3-4 दिन के अखबार की जो कुछ हेडिंग्स आती हैं, और वर्ल्ड लेवल पे इंडियन इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या उथल-पुथल चल रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या उथल-पुथल चल रही है, उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं। इवन कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि भैया आपके आपके जिले का एमएलए कौन है, आपके जिले का एमपी कौन है, तो कैंडिडेट है वो उसका आंसर नहीं दे पाता। ये क्वेश्चन थोड़ा कैंडिडेट के असेसमेंट के लिए होते हैं कि कैंडिडेट है वो ओवरऑल एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसमें अपना कितना रोल प्ले कर रहा है, करंट अफेयर्स जो है उसमें अपना कितना नॉलेज उसको है, क्या कैंडिडेट एक ही तरफ पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या दूसरे जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें भी उनका नॉलेज कैसा है और किस तरीके से वो इंटरेस्ट ले रहा है। कई बार हम कैंडिडेट से पूछते हैं, आप कौन-कौन सी मैगज़ीन्स पढ़ते हो, कौन-कौन से अखबार पढ़ते हो, और कौन-कौन सी प्रोफेशनल बॉडीज़ के मेंबर हो। कई राइट। बार कैंडिडेट ये सोचते हैं कि यार मुझे किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर रहने से क्या मतलब है? महीने की ₹1000 फीस लगती है, साल की ₹1000 वाली फीस लगती है, बट इट मैटर्स अ लॉट। ये हमें यह दर्शाता है कि कैंडिडेट है वो अपने फ्यूचर करियर को लेकर के कितना उत्साहित है और कितना अलर्ट है। और इन चीज़ों से हमें काफ़ी इनपुट मिलते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दैट कम्स टू नो अस। सो करंट जो ट्रेंड्स होते हैं, उन करंट ट्रेंड्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज़ वेल एज़ ऑर्गेनाइजेशन जो करंटली जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इंटरव्यू देने जा रहा है, ही और शी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। अगर वो अवेयर नहीं है, तो इट गिव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट। जनरल अवेयरनेस उसका अच्छा होना चाहिए, ट्रू। क्योंकि आप इंडस्ट्रीज भी देख रहे हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल, ऑलमोस्ट आप पूरा ग्रुप का ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं। तो आपके हिसाब से, क्योंकि आज का जो इंटरव्यू देखने वाले 90 से ऊपर जो क्राउड है, 90% से ऊपर, वो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के विद्यार्थी मैक्सिमम है हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग का फ्यूचर कैसा है, मैनेजमेंट एजुकेशन का फ्यूचर कैसा है आने वाले 10 सालों में?
सो दैट स्टूडेंट को पता चले कि उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। सी अरविंद जी, जिस तरीके से देश में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरीके से जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, मैं ये मानता हूँ कि जो क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स हैं और क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं वही टिक पाएंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा को सुनता रहता हूँ। शिव खेड़ा ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई थी जो मेरे जहन में आज भी है। वो बताते हैं कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू से दैट people are assets for the organization, but now राइट, people are saying that only good people are assets for the organization. So डेफिनेटली। आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर। और मुझे लगता है कि आज का जो हमारा डिस्कशन रहा है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। और इसी के साथ आप किसी भी तरीके की मोटिवेशनल नॉलेज रिलेटेड, एचआर रिलेटेड किसी भी इश्यूज के सर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। We have already said that he has his own YouTube channel spreading many motivational things on that channel, and you can be connect with him at any point of time. Links will be there in the channel. And with this, I think, sir, it was a great session, and I think it will be very motivating for all the students. And जो आपके नेचर में है कि आप 2-3 लाइनों के साथ हर चीज को शुरू और अंत करते हैं। शुरू हम उससे नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि अंत आप 2-3 लाइनों के साथ करें, जो विद्यार्थियों के लिए अलग एक सुझाव लेकर आए। तो मैं चाहूंगा कि कुछ हो जाए। अरविंद जी, मैं मोटिवेशनल स्पीकर स्वामी ज्ञानवत्सल हैं, उनका भी मैं फॉलोअर रहा हूँ और मैं उनको सुनता रहता हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि these are the times of high rise buildings and low rise characters. These are the times where man has reached all across the moon, but he has finds it difficult to cross the road and meet the neighbor. These are the times where we have broader highways and narrower viewpoints. ओके। These are the times where man has many things to show in his showcase, but there is nothing in his stock room. So, in these times of crises, and I would like to request all the candidates that human touch, human connect जो है वो आप सभी लोगों का बरकरार रहना चाहिए. Even though we are in the age era of technology, but still, if you are not connected, if human relations are not there, if you are not touched with anybody's personality, then it is very difficult for you to grow in the future also. So keeping in mind the human relations, you have to grow further. Keeping in mind your family, friends, colleagues, and everything, you need to grow all together. That is my wish for all the students. So मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे से इंटरेक्ट करते रहना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव पंड्या। आप उस चैनल पे किसी भी तरह की एडवाइस के लिए आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और साथ ही अरविंद जी के चैनल को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करके चलो और चलो। उनको आप उनके जो ये ज्ञान की जो का भंडार है उसको आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।